Are we live? Oh, okay, yeah? Okay, hello everybody. Hello. Wow, that was so nice. My name is Arsh Malhotra. Welcome to Habitat Studios. Round of applause for Habitat Studios, yeah? Welcome to Poetry Open Mic. Today is Sunday. It's so nice that you guys had nothing better to do on a Sunday afternoon. It's a joke, please. Hope everyone understands the definition of a joke. And I'm glad everyone showed up. We've got quite a bit performers. How many of you guys are performing? Give me a cheer. And how many of you guys are audience? Give me a cheer. Wow. Poetry has an audience. That too open mic. Guys, I love this audience because how supportive friends or चाहने वाले जो हैं आपके that have come to support, I'm assuming audience members, or just like if you just walked in randomly to support everyone, good. I mean, good, thanks. But round of applause for the audience members, yeah, because without audience members, we as poets, give us a mic, give us a stage, हम 12 घंटे बात करेंगे. Correct? We don't need a reason. We'll start talking to each other, we'll narrate poems to each other, we'll appreciate each other. But without audience members, we're nothing. Poetry में पैसा है? है? No. Yeah, dude, you guys are paying to perform. I mean, everyone, even I pay to perform everywhere. It sucks. But no, thank you guys for coming out. How many of you guys have never performed a poetry open mic before? Give me a cheer. Oh, someone's performed. How many of you guys are performing at Habitat for the first time? Give me a cheer. I had half off. Give me a cheer. Oh, fuck. How many of you guys, one more last time. How many of you guys are performing at Habitat for the first time? Give me a cheer. ठीक है ना भाई? All good? पानी मंगाओ. Some green tea, something. All good. What's your name, sir? Deepak. Deepak, sir. Are you performing? Yes. Have you got someone to support you? No, I don't. Same. We'll support each other. But speaking of people that are not here, this event is being live streamed on YouTube. So I'll give you guys about 30 seconds. If you want to, you can go onto YouTube to Habitat's YouTube. I was going to say Instagram channel, YouTube channel, and send everyone a link if you want, and they can watch you live. I'm going to give you about 10 seconds to do that if anyone wants to do that. No? You? Yeah? Yeah, cool. I'll give you guys. Even I'll take time. Chalo. I have nothing to do, but my mom's given up on watching me host, bro. She stopped coming also. Bas yaar. So, thanks, man. But yeah, so I have only one person to give it to, my girlfriend, and she sees it because she has to. Nahin she knows a solo show is coming up on her. See, that's the thing about dating a writer. If you fight, you have the satisfaction, you're like, fuck, एक तो poem निकलेगा. एक तो reel निकलेगी. So you don't even mind extending the fight for like 2 more days. You're like, अरे रुक ना, last का paragraph बाकी है, लड़ते रहे. Solution नहीं चाहिए, रुक. No, but yeah, so you also have beautiful people that work at Habitat that will be taking your photos, and you will get your photos in your DM. I know a lot of people are taking photo with the H. Y'all can put it up on, even I did that. The first time I came here, I put it, bro, it was my Bumble profile picture. I had 4, I'm not even fucking with you, I had 4 of my Habitat pictures on my Hinge profile. And the first time I met now my girlfriend, she swiped right on me and she told me one thing. I will only go out on a date with you if you write anything on me and give me royalty. And I was like, royalty? उसके लिए पैसा चाहिए. हमें जो मिलता है ना रॉयल्टी का, दैट इज आवर रेवेन्यू. उसमें से क्या परसेंटेज तू? क्या बोलूँ, यहाँ पे आईपीपी लोग चुराते हैं यार. बट या आई डोंट नो व्हाई थेरेपी इज ऑन ट्यूसडे. ओके, we'll just go over a quick few rules before we call on our first act. You guys have 4 minutes. The timer is there. You guys want to see the timer? At 3 minutes 30 seconds, you will see a light. You can see the light at the back. It's faint. It's red. When you see it's 3 minutes 29 seconds, don't look here. Don't start looking here and giving your poem or whatever you're doing. Oh, I didn't see the light. No, don't do that. No, please. Be nice. And at 4 minutes, the light will stay on. And anything beyond that, I will
like I will just come up. See, from here you can't see shit. So all you see is my eyes. I'm not pretty. You don't want nightmares. But also respect, we've got a long list. We've got about 12 performers today. And we have to wrap up the show on time because we've got another show at 4 o'clock. So we have to wrap up on time. And I want everyone to, get their chance. And maybe thoda aunga, baat karunga, I'll also talk to you guys, It'll be fun. So that's why I just stick to your time limit. If you are talking about something sensitive, give a trigger warning. Yeah, I know poetry is about emotion, which is nice, and I'm glad people are brave enough at times to be vulnerable on stage, but sometimes people in the audience might not want to go through the same thing. They might not be ready yet. So please be considerate and give a trigger warning so that they can step out, and I will personally go and bring them. And if I also go out, then we'll wait. Then you can yell out. I'll come. But yeah, other than that, have fun. If it's your first time performing, if it's your first time ever performing, have fun. First times are only once. And if it's your first time at Habitat, enjoy the stage. Like I said, first time only comes once. So make sure you have fun. And if you fumble, it's okay. It's a fucking open mic. For a reason. I am going to try poetry. That's going to probably be shit. I wrote one today. I'm going to try. So it's okay if you fumble. Don't be nervous. And most importantly, just have fun. And because I know the first time I ever performed, it went like this. So learn to savor the time that you have on stage. And as an artist, everyone loves being on stage, right? So yeah, and we're all here to support, yeah? Yeah? Yes, we'll all support you guys. And I'll also come. We'll talk to each other. The good thing about poetry is because you're so vulnerable, it's important also that we make you guys comfortable to, come up on stage and be that vulnerable because it is a bit emotional at times. So I will talk to everyone. We'll all talk to each other. We'll get to know everybody. आपका आधार कार्ड नंबर क्या है सर? आपको भी नहीं पता. चलेगा. Hi ma'am, what's your name? Neha. Great to know. I'm kidding. I'll get to know you over the course of, and we play a couple of games if we have the time. Yeah. So I'll start with a piece because I know sometimes people say I don't want to be the first. That's why I talk like Chutiya for like 10 minutes. So you guys get a little relaxed. And then we'll call on our first act. So you guys want to hear a piece? Yes? No? Maybe? I have the mic. This is a small piece I wrote recently. It's just another form of saying I love you. The minute we met, I felt a connection so pure, a feeling I experienced like never before. No day ever felt brighter, birds never sang so loud. If we'd be lost amongst people, I'd still find you in a crowd. Because you're one in a million, and I have something to say, ki, please mujhse dur mat ja. I want you to stay. I don't think my heart will ever let go. It's a bit stubborn, you see. Kya karu ab? Ye dil hai ki manta hi nahi. It's the invisible strings that brought us close, और अब तेरे साथ मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ. जिंदगी भर अपने सपने तेरे सपनों के साथ जोड़ना चाहता हूँ. I'll wait till the end of time, बस तेरा ही इंतज़ार है. Because I'm helpless when it comes to love. ये दिल जो बेकरार है. Thank you. Please keep the applause going. Come on, come on, come on, come on, come on. Louder, louder, louder. For our first act of the evening, please, I'm sorry if I mispronounce it. Bagheli Babu. He's right there. Keep it going until he comes on stage, guys. So, hi everyone. मैं बघेली बाबू हूँ और मैं मध्य प्रदेश के ईस्ट पार्ट से आता हूँ. तो मैं कुछ पोमेडी में आपको सुनाऊंगा, है ना. तो पहला पोमेडी का मेरा पीस है. 4 लाइन सुनिए कि कोई मेरा खुदा बन गया था, कोई मेरा खुदा बन गया था और सबसे जुदा बन गया था. कोई मेरा खुदा बन गया था और सबसे जुदा बन गया था. बस एक रात फ़ोन नहीं लगा मेरा, कोई और दूल्हा बन गया था. बस एक रात फ़ोन नहीं लगा मेरा, कोई और दूल्हा बन गया था. अगली कविता देखिए, कटने पे बेस्ड है ना. कि अब जो मोहब्बतों का सबक देते हैं फिर रहे, अब जो मोहब्बतों का सबक देते हैं फिर रहे. पहले हुए थे दोस्त, फिर आशिक हुए थे हम. रोज़ रात फ़ोन चार्ज पर लगाकर उल्लुओं की फ़ौज में शामिल हुए थे हम. इतना हसीन चेहरा, इतना हसीन चेहरा भी क्या नुकसानदेह है. सोचे नहीं थे एक भी, बस जाहिल हुए थे हम. और तब से पता चला कि कटता है किस तरह. कटने के ठीक बाद ही तो काबिल हुए थे हम.
अब देखिए मतलब कि इतना सारा कटने के बाद क्या होता है कि इंसान पैसा वैसा कमाने के लिए सोचता है, तो फिर उसमें भी कट जाता है ना। तो देखिए कि ये अगली कविता कि 1.5 लाख का फ़ोन और 1.25 रुपए का मुख, 1.5 लाख का फ़ोन और 1.25 रुपए का मुख, और पेट हमारा बढ़ता ही जा रहा, ख़त्म न होता दुख। पेट हमारा बढ़ता ही जा रहा, ख़त्म न होता दुख। और अ, औकात हमारी साइकिल वाली। सुनिए, फिर से सुनिएगा कि 1.5 लाख का फ़ोन और 1.25 रुपए का मुख, अब पेट हमारा बढ़ता ही जा रहा, ख़त्म ना होता दुख। अब ख़त्म ना होता दुख, ले ली है स्पोर्ट बाइक। ख़त्म ना होता दुख और ले ली है स्पोर्ट बाइक। औकात हमारी साइकिल वाली, कंपनी दे न रही है हाइक। औकात हमारी साइकिल वाली, कंपनी दे न रही है हाइक। और पेट्रोल भराने में हमारी आत्मा जा रही सूख। और डालूं पोस्ट इंस्टा में तो लोग दे रहे थूक। लोग दे रहे थूक, बाप बेचे कबाड़ और रद्दी। लोग दे रहे थूक और बाप बेचे कबाड़ और रद्दी। सिंगल हूँ भाई, किसके लिए पहनूं जॉकी की चड्डी। तो डीप है। तो देखिए अब जब इतना सारा एक्सपीरियंस हो जाता है कटने का, तो खुददारी आ जाती है ना। तो इस खुददारी पे एक कविता है, अरे जाओ, तो सुनिएगा इसको। तुम्हें आसान लगता है जब तुम मेरा सच्चा प्यार ठुकराने के लिए गर्व से सीना तान कर कह देती हो, अरे जाओ सरकारी नौकरी लेकर आओ, तभी तुम मुझसे ब्याह रचाने के ख्वाब देखना। भले तुम घर वालों का नाम लेके कहती हो कि ऐसा हो नहीं सकता, उन्हें अवसर ही चाहिए कोई, पर उस पर मेरे दिल की तो सोचो। मेरा दिल फट सा जाता है ये जहाँ थम सा जाता है। कोई अपना नहीं लगता, अपनी इस नाकामयाबी पर दम घुटने लगता है। फिर तुम्हें आसान लगता है जब तुम्हें कोई सरकारी दूल्हा मिल ही जाता है, मांगता है दहेज के बहुत से पैसे, तो रो रो कर बताती हो नहीं है मेरे पापा के पास इतने सारे पैसे कहाँ से दें। डालती हो पोस्ट सेंटियापे के तो दुनिया हाँ में हाँ मिलाती है। मेरा दिल तुम्हें देखकर रोने को चाहता है, पर मेरा दिल ये सब सोचकर हंसने को चाहता है, पर तुम्हारे इस पोस्ट पर लिखने को चाहता है, अरे जाओ। तुम्हारे सेंटियापे पर तरस आता है, पर तुम्हारे इस रूप पर लिखना चाहता है कोई कविता, अरे जाओ। तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम्हें दिलासा दिलाता हूँ, देता हूँ फुल सपोर्ट और फिर से नई आस बंधाता हूँ। तुम मुझे आशा निराशा में डाल के कंफ्यूज करती हो और कंधा बना करके फिर से यूज़ करती हो। अरे तुम्हें मतलब नहीं कोई तुम्हें कितना समझता है, सरकारी नौकर या फिर कोई धनवान ही जचता है। अरे तुम ये क्यों नहीं कहती दोनों मिलकर कमाएंगे चलो आओ, दुनिया के सारे गम दोनों मिलकर उठाएंगे चलो आओ, अरे जाओ अरे जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। I have to ask. Firstly, good job, right? Yeah? Bro, such a roller coaster ride. बस इतना ऊपर पहले हंसाया फिर रुलाया, फिर at the end of it I was like, I need a hug, like you need a hug. And I was like, तू ठीक है ना भाई? But great job, great job. आपने लिखना कब स्टार्ट किया? मैंने 2016। 2016. And आप बॉम्बे में रहते हैं? Did you move here? पुणे में रहते हैं। तो आप पुणे से यहाँ कब आए? आज सिर्फ ओपन माइक के लिए पुणे से 4 मिनट के लिए। डेडिकेशन डेडिकेशन। आई केम ऑफ 30 मिनट्स अवे ब्रो। मैं बोला अरे यार संडे, बट नो आई रियली लव hosting, I really love coming, but that was the push. But Pune, that's another level. And how did you start writing? कैसे लिखना शुरू किया? क्या हुआ? लिखना तो भाई पुरानी कहानी है। बताओ। चलो ठीक है, बाद में सुनाते हैं। बट बिफोर आई कॉल ऑन द नेक्स्ट एक्ट, आपने इतना एक यू सो कॉमेडिक इन योर स्टाइल एंड क्लियरली यू सी आई डोंट राइट इन हिंदी। Clearly, even the way I talk, I switch to English midway. But I'm jealous of people that write in Hindi because it's another language. It's beautiful. तो मैंने एक शरारती शेर लिखा था। ऐसे इतना लिखता नहीं हूँ, लेकिन एक शरारती शेर लिखा था और आपने जो स्टार्टिंग में बोला था उससे याद आया तो अर्ज़ किया है। तो पहले मैं एक्चुअली आपको बता दूँ हाउ टू अप्रिशिएट, ठीक है?
If it's English, you can snap along. You liked it. Thank you, Deepak ji, for doing that when I was performing. I think someone did it here. Thank you. You can snap along. It's motivational for the people on stage. And अगर हिंदी है तो कुछ भी करो, कुछ भी करो. मतलब वाह वाह करो. Just like throw appreciation, and it's nice if you do like something. It's like, you know, it'll motivate the person on stage. ऐसे मत बैठ. But हाँ, anyway, तो अर्ज किया है. हाय नजर ना लगी कि आओ तुम्हें सुनाए बातें कुछ खास, कि आओ तुम्हें सुनाए बातें कुछ खास, जिसके लिए रहना होगा तुम्हें मेरे पास. कि आओ तुम्हें सुनाए बातें कुछ खास, जिसके लिए रहना होगा तुम्हें मेरे पास. मेरा हाथ थाम कर तुम चलो मेरे साथ, मेरा हाथ थाम कर तुम चलो मेरे साथ, फिर मैं बना ही लूंगा तुम्हारी माँ को मेरी सांस. Keep the applause going for our next act. Please give it up for Sundaram. He's coming all the way from there. Please keep it going until he gets on stage, guys. आपने इतना बढ़िया सेटअप दे दिया, हमको आदत नहीं है. अच्छा बढ़िया है सब लोग. तो बस भाई ने बहुत हंसाया हमारे, है ना, बघेली बाबू ने. मैं कुछ ज़्यादा लिखा नहीं यार, बस थोड़ा बहुत लिखा है, वही सुनाता हूँ. सुनेगा. अर्ज़ किया है. उसने कहा कि मैं उसे रोक सकता था, उसने कहा कि मैं उसे रोक सकता था, यार वो जाता ही नहीं अगर मैं उसे रोक सकता था. और सुनिएगा. लिखा यूँ है कि मुफलिसी गरीबी, मुफलिसी के देखो ये कैसे पैमाने निकल आए हैं, बच्चे चलना सीखे भी नहीं और कमाने निकल आए हैं. जब जिंदा थी तब कहीं और तलाश रहे थे मोहब्बत, माँ मरी तो बेटे प्यार लुटाने निकल आए हैं. माँ मरी तो बेटे प्यार लुटा. और अपनी व्यथा बताता हूँ आप लोगों को कि अजीब कश्मकश, अजीब उदासी है भीतर मेरे, कि अजीब कश्मकश, अजीब उदासी है भीतर मेरे, लगता है मुर्दों का शहर है भीतर मेरे. अजीब कश्मकश, अजीब उदासी है भीतर मेरे, लगता है मुर्दों का शहर है भीतर मेरे, और भीतर मेरे घर किए हुआ है एक अजीब सन्नाटा, लगता है कोई मर गया है भीतर मेरे. बहुत शुक्रिया. और होता है ना, हम लोग बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं. तो मैंने लिखा था उस पर कि इतना रहा हूँ ज़माने में कि क्या बताऊँ, अपनी ही समझ में रहता हूँ मगरूर में. इतना रहा हूँ ज़माने में कि क्या बताऊँ, अपनी ही समझ में रहता हूँ मगरूर में, और बच्चे से सीखा है एक हुनर मैंने, जाति मजहब की जो करे बात उनसे रहता हूँ अब दूर में. और एक आखिरी नज़्म है, 2-3 शेर है उसमें, और बस फिर समाप्त फरमाऊँगा. यार थोड़ा सा दिमाग का तकाजा है, बहुत कामों में लगा रहता है, तो इसलिए याद रहती नहीं है, बस जितना याद रहता है मैं सुनाऊँगा. बस छोटी सी है. चुभने लगी है कुछ इस कदर सूरज की रोशनी के अब, चुभने लगी है कुछ इस कदर सूरज की रोशनी के अब, नया पौधा भी बादल से छाँव मांगने लगा है, नया पौधा भी बादल से छाँव मांगने लगा है, और तबाह किया है कुदरत को कुछ इस कदर आदमी ने. अर्श भाई की तबाह किया है कुदरत को कुछ इस कदर आदमी ने, कि दरख्त भी खुदा से पाँव मांगने लगा है, कि दरख्त भी खुदा से पाँव मांगने लगा है. और आगे की लाइनों पे अगर दाद नहीं आई तो फिर आज मेरा आना विफल है. कि दम घुटने लगा है अंदर की आबो हवा से के अब, दम घुटने लगा है अंदर की आबो हवा से के अब, बच्चा माँ से खिलौनों की जगह घाव मांगने लगा है. बच्चा माँ से खिलौनों की जगह घाव मांगने लगा है. और यादों की इमारतों ने लम्हों की हवाओं को कैद किया है कुछ इस तरह. ध्यान देना कि यादों की इमारतों ने लम्हों की हवाओं को कैद किया है कुछ इस तरह, कि ये भी जिंदा रहने को बहाव मांगने लगा है, कि ये भी जिंदा रहने को बहाव मांगने लगा है. और इतने इत्मीनान से तोड़ा गया है ये आईने में खड़ा शख्स, कि इतने इत्मीनान से तोड़ा गया है ये आईने में खड़ा शख्स, कि ये भी सफ़र हयात से मौत का पड़ाव मांगने लगा है. एंड दैट्स माय टाइम. थैंक यू सो मच, यू आर द लवली ऑडियंस गाइस. एंड बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर होस्ट.
I love two things about his performance. A, he's not. Thank you for supporting in. Like I'm also wearing Indian. And thank you for everyone that just. I don't know why I'll get to it. It's not like it's bad that everyone didn't wear Indian. Don't. I'm not saying that. I'm just like, I thought I'll be the only one wearing it today, so it's a nice surprise, pleasant surprise, I'd say. And the secondly, so beautiful about love, right, guys? Right? At bro, that Khilono. I'm sorry. I know I suck at Hindi, so I'm very apologetic. But that Khilono wali line touched me. Like, bro, that sounded weird. But yeah, round of applause. It was so nice. आपने लिखना कब शुरू किया? जी अभी बस हाल फिलहाल में 2022 आई गेस। मतलब ऐसे ही? तब तक ये समझ नहीं थी ना, 18 साल का हुआ था नया नया, तो बोलते हैं कलम पकड़ते हैं। How old are you? 20 years. 20. Ay. Anyone younger than 20, give me a cheer. Oh, the fuck, guys. Hi, how old are y'all? 90. What do y'all do? Students, I'm assuming. Hoping, actually. More like in this age. Where do y'all study? I'm doing job actually. You're doing a job. Where are you working? In Miami firm. Nice, in Miami. Ah. Like, so you don't live in India. Oh, like the company's name Miami. Oh! Wow. My bad, G. But, like, what Like animation. animation? Engineering second year. Wow. Yeah. Question mark? और आप क्या करते हैं? Student and teacher both. क्या अपने आप को ही पढ़ाते हैं? Student and teacher sits in front of a mirror. Explain. Don't just leave me. What do you do? I'm a student and a teacher. Next level cosplay, bro. I'm a second year engineering student and I also teach to 8 to 12 standard physics, chemistry and maths. Say that, na? Sure. मुझे लगा शायद Good morning. हाँ good morning. खुद ही को बोल रहा है. मुझे लगा शायद वो छोटी बात पकड़ते। अच्छा. पीटीए पे भी लाइक डैडी के साथ ही बैठा होगा. आपका बेटा ना बहुत ही नालायक है. हाँ पता है. खुद ही को पढ़ाता है. Yeah, dude. I'm a student and a teacher. Nice. No one's introduced themselves as that before, dude. What other combinations could there be? I was gonna say model and cameraman, but then I realized those are like your influencers anyway. मतलब खुद ही like they're locked in one room putting a camera and talking to themselves. Get help. Anyway, we'll move on. Yeah. I forgot what I was talking about. I just got so lost in yon. You guys are so like small. But hi. What's your name? Aditya. Aditya. What do you do, sir? I have just finished my graduation. You also just finished your graduation. That's nice. Have you also written on love? Not yet. Okay, good. No, because whenever I have like 18-year-olds come up and then write about like, bro, वो छोड़ के चली गई ना. I was like, तू पहले एक तो homework कर. 11 बजे घर पहुंचना होता है तुझे. It's good, good. And how did you get into writing? I'm writing since 9th grade. क्या बात है? What? क्या हुआ? My friend used to write lyrics, so I got inspired from him and I started writing. Nice, yeah. That's such a sweet reason. और आप lyrics लिखते हैं, poetry लिखते हैं क्या? Lyrics भी लिखता हूँ, try किया था, poetry भी लिखता हूँ. Lyrics भी लिखता हूँ, poetry भी लिखता हूँ. जावेद अख्तर. Cool. Great. So, great. I'm just trying to get to know you all. Yeah, just trying to get to have some fun because we have some time. So, but we'll call on our next act of the evening. But before that, I just wanted to do a small piece on old school love because he spoke a lot about love. Old school love. Give me a cheer. Lungs में capacity नहीं है क्या? इतने बूढ़े हो गए हम. New modern love, give me a cheer. You a better cheer. But anyway, this is a poetry about old school love versus modern love. Yeah. मुझे लगता है old school love is the one that goes a long way. Modern love has so many conditions. You have to be careful in what you say. लोग बोलते हैं हम साथ में हैं लेकिन हम साथ में नहीं. मैं confuse हो जाता हूँ. क्योंकि प्यार में लोग दुनिया देखते हैं. मैं तो सिर्फ तुझे देख पाता हूँ. I don't know how you can love someone, not be attached, be in love yet not be together. I guess old school love taught me that I love one person forever. ये benching, pocketing, cushioning, ghosting कुछ नहीं आता मुझे.
But the one thing I do know is that ज़िंदगी भर दुनिया का प्यार देता रहूँगा तुझे. So which side of the spectrum is better, old or new? That's still up for debate. But in a world full of redevelopment, will you be my old school building that stands strong till date? Thank you. Please welcome, please keep the applause going and welcome our next act for the evening. Please give him Sohan Raj. He's coming from the second row. Applause should not stop until they get on stage, guys. Come on. Okay. Hello guys, hello. Am I audible enough? आ रही ना आवाज़? मेरा नाम सोहन है, सोहन राज, एंड मैं गाने बनाता हूँ. भाई just do landscape, yeah. आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग. Okay, sure. No, yeah. So नहीं चालू रखो. I'll do what I've decided to do. तो पहला एक कथा से शुरू करते हैं कि ये जो अपने हैं इनसे भी पूरी पहचान थोड़ी है. ये जो अपने हैं इनसे भी पूरी पहचान थोड़ी है, और पहचानने के बाद भी निभाते जाना आसान थोड़ी है. सबको पता है ज़रूरतों की मिलावट रिश्तों में किसी का किसी पे कोई एहसान थोड़ी है. दूसरा कथा है कि न पास बुलाती है वो न खुद आती है, बड़े फासलों से रिश्ते निभाती है. न पास बुलाती है वो न खुद आती है, बड़े फासलों से रिश्ते निभाती है. मेरे टुकड़े टुकड़े कर डाले प्यार में और कहती है मेरा भला चाहती है. फिर एक शेर है, एक शेर सिंगल सा साइंस है थोड़ा सा इसमें. मेरी लोहे सी तपती मजबूती मुझसे दगा कर गई. लोहा इंपॉर्टेंट है, मेरी आयरन वैसे भी इंपॉर्टेंट है. मेरी लोहे सी तपती मजबूती मुझसे दगा कर गई, वो नमी की तरह ही जिंदगी में और तबाह कर गई. थोड़ा मज़ाहिया शेर देखते हैं कि मैं पीछा छुड़ाता फिरूं उदासी से, फिर भी ये पीछे पीछे आती है. मैं पीछा छुड़ाता फिरूं उदासी से, फिर भी ये पीछे पीछे आती है. वो लड़की खूबसूरत बहुत है, लेकिन उसे हल्की हल्की मूछें आती है. ओके. कभी कभी लगता है कि यार तुम जिस चीज़ के लिए इतना हासिल कर रहे थे यही है क्या, वो मतलब इसी के लिए कर रहे थे क्या इतना. तो उस पर एक लिखा है कि मेरे जुनून का ये अंजाम होगा सोचा न था. मेरे जुनून का ये अंजाम होगा सोचा न था, इतनी तकलीफ़ के बाद ऐसा आराम होगा सोचा न था. मेरे जुनून का ये अंजाम होगा सोचा न था, इतनी तकलीफ़ के बाद ऐसा आराम होगा सोचा न था. सुन्न हो चुकी है मेरे वजूद की सारी हदें, कामयाबी का जायका इतना आम होगा सोचा न था. फिर कभी कभी लगता है कुछ ज़्यादा ही जान लिया. यू कैंट फूल योर सेल्फ एनी मोर, है ना. वो इनोसेंस छूट गई. तो उस पर लिखा है कि अपनी तलाश में तो हम दरबदर हो गए, अपनी तलाश में तो हम दरबदर हो गए, जाने पहचाने लोग इधर उधर हो गए. लौटने को अब कोई घर ही नहीं बचा, इतना भटके कि बेघर हो गए. अब एक छोटी सी पोएम जल्दी जल्दी सुना देता हूँ कि कभी कभी लगता है ना कि यू आर सो डीप इन अ मैस कि कोई तुम्हें बचाने आ रहा है वो बर्बाद हो जाएगा, है ना. तो लिखा है कि मेरे गीत है अधूरे मेरी प्रेरणा बनोगी, मेरे लफ्ज़ हैं मुश्किल आसान कर दोगी. मेरे गीत है अधूरे मेरी प्रेरणा बनोगी, मेरे लफ्ज़ हैं मुश्किल आसान कर दोगी. तुम कोमल सौम्य नाजुक गगन परी, मेरा अवसाद अत्यंत भारी, मुझे अपने साथ उड़ा लोगी. मुझे अंधेरों से बचाने वाली तुम वचन दो. वचन एंड ऑल, है ना. थोड़ा सा ठेठ हिंदी में लिखा मैंने कि मुझे अंधेरों से बचाने वाली तुम वचन दो, खुद को मुझसे बचा लोगी. फैलाकर अपनी दमित शक्तियां मुझे स्तब्ध कर दो. मैं गलत साबित होना चाहता हूं, मुझे गलत साबित कर दो. समय प्रतिकूल अस्थिर मन है, बात बात में उलझन है. समय प्रतिकूल अस्थिर मन है, बात बात में उलझन है. ये कोलाहल शांत कर दोगी. मैं देर से चल रहा हूँ, थक गया हूँ, इस यात्रा का अंत कर दोगी. मेरे गीत है अधूरे मेरी प्रेरणा बनोगी, मेरे लफ्ज़ हैं मुश्किल आसान कर दोगी. और जल्दी जल्दी चलते चलते एक कंटेम्प्रेरी लिंगो में शेर सुना देता हूँ कि हाँ, कि यही है कि अकेला हूँ बता रहा हूँ कंप्लेन नहीं कर रहा. इसका मीटर देखो. अकेला हूँ बता रहा हूँ कंप्लेन नहीं कर रहा, अपनी इस कैफियत के लिए किसी को ब्लेम नहीं कर रहा. नहीं पसंद आते दुनिया को तो ना सही साहब, अब दुनिया के लिए मैं खुद को चेंज नहीं कर रहा. थैंक यू.
Firstly, तो I love your voice, right? What a great voice you have. मतलब Amul voice of India. Happy हो. And I was going to ask him where he got it. I'm so stupid. How old are you? I'm 27. 27. When did you start writing? Probably 12th standard. 12 साल हाँ तो around 10 12 years ago 2012 हाँ 12 years ago nice and कैसे लिखना शुरू किया ऐसे ही लगता था कूल है तो लिखता fad kind of thing. fad kind of thing और अब क्या क्या करते हो what do you do I'm GST inspector under central government. how many asses tightened out here I could have seen the tension just right woo cool no further questions moving on no I'm done dude I don't know what the fuck to ask. Like okay what do you do like GST inspector Tax officer. tax officer basically the timing of that cough was impeccable this was good crowd work I might put it on Instagram if that's okay I'm not gonna, I'll cover your name and everything but this was good I got a laugh so I might just put it on Instagram but thanks I'm gonna cover your name and everything your voice will also I mean voice kya hi cover you know when people like mask a voice over to cover a voice to like when they're saying being anonymous like I feel his voice is already that like you know the deep voice that is used to cover suspects I think he is already that क्या ही वॉइस करूँ बट आई कवर योर नेम एनीथिंग डोंट वरी एनीवेज पीछे से आपका सर दिख रहा है और कुछ नहीं डोंट टर्न इट डिफीट द पर्पस ऑफ कीपिंग आइडेंटिटी डोंट टर्न because I told him camera पीछे he was about to turn like, don't do that but hi ma'am that's okay I'm not मुर्गा नहीं बना रहा मुशायरा wow but hi ma'am what's your name Kanchi ma'am are you performing great to know and where are you from Bombay only how long have you started like how long have you been writing is this your first time No, this is not my first time, but I've been writing for about 7 years. Nice. I've performed, say, 6-7 times before this. Nice. Glad to have you. Thank you for joining us. Sure. But we are just about 3-4 performers in. Don't worry, you're not too late. But sir ji, आपने एक इतनी अच्छी you spoke very true about heartbreak. तो एक शेर याद आया था and then we'll call on our next act. कि वो खुश है पर हमसे नहीं. वो नाराज़ है पर हमसे नहीं. वो खुश है पर हमसे नहीं वो नाराज़ है पर हमसे नहीं किसने कहा कि उनके दिल में मोहब्बत नहीं किसने कहा कि उनके दिल में मोहब्बत नहीं मोहब्बत है हमसे नहीं थैंक यू प्लीज गिव मी कीप द अप्लॉज गोइंग फॉर आवर नेक्स्ट एक्ट ऑफ द इवनिंग प्लीज गिव इट अप फॉर तबरेज जी राइट हियर कम कीप इट गोइंग अंटिल ही कम्स अच्छा टेक योर टाइम अब मुझे लग रहा है कि श्रीनगर आ गए This video is going to be like परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन ऐसा लगना चाहिए चलो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एक रिलेशनशिप होती है उसमें एक पॉइंट आता है जब दोनों जन एक मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार हो जाते हैं दोनों के अंदर एक मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो उसके ऊपर मैंने लिखा है कि लहजा नरम कर लिया सर झुका लिया हमने लहजा नरम कर लिया सर झुका लिया हमने हाँ। लहजा वापस एक बार स्टार्ट करेंगे कि लहजा नरम कर लिया सर झुका लिया हमने वो हमको मिले सब कुछ पा लिया हमने प्यार भरी बातें होती रही बातों ही बातों में एक दूसरे को जान लिया हमने नाराज़गी रही ना दरमिया प्यार से नाराज़गी को मार दिया हमने और एक लिखा है
कि मेरे जहन में समा रहे हो, तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है, ऐसा एहसास दिला रहे हो। तुम्हें मालूम है तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं, फिर भी मेरे पास आकर मेरी मोहब्बत का तमाशा बना रहे हो। और एक है कि अब ना आता है वो रोज़ आने वाला, अब ना आता है वो रोज़ आने वाला, काम ऐसा करता था मेरा दिल लुभाने वाला। अब वो करता है हम पर ऐसे सितम, मेरा दिल दुखाता है मेरा चाहने वाला। मुझे वो ज़माने याद आएंगे या मुझे नदामत में छोड़ आएंगे। मुझे वो ज़माने याद आएंगे या मुझे नदामत में छोड़ आएंगे। फरहान बाहम मिला करते थे हम जैसे, न जाने वो दौर फिर कब आएंगे। अभी कुछ प्यार पे लिखा है कि किसी से गुलाब मिला, किसी से गुलाब मिला, दिल खुश हो गया। किसी से गुलाब मिला, दिल खुश हो गया, रखा किताबों में निशानी की तरह। जब भी याद आई उसकी, किताब खोला और दिल खुश हो गया। और हमने उसे गुलाब समझा, खुशबू सी आई कांटे भी लगे। हमने उसे गुलाब समझा, खुशबू भी आई कांटे भी लगे। उसने प्यार से मरहम लगाया, दिल खुश हो गया। और लिखा है कि खत लिखना अफसोस ना करना, खत लिखना अफसोस ना करना, दिल को वसवसों का घर ना करना। कोशिश करना तुम अपनी तरफ से, खत आएंगे हमारी तरफ से, ये मत समझना। और एक है कि मशवरे की ज़रूरत है, आँख नम है। थोड़ा डीप है। मशवरे की ज़रूरत है, आँख नम है, हाल बीमार सा है, घर में सिर्फ हम हैं। जहन में आ रही है हर अदा उसकी, जहन में आ रही है हर अदा उसकी, उसके दीदार के मोहताज हम हैं। पागल कह के बुला रहे हैं लोग किसी को, आसपास तो कोई नहीं, लगता है वो हम हैं। और एक है, नहीं टाइम हो गया, ओके डन। Guys, keep it going. Sorry, like sir, 4:40 हो गया था, 4 minute 40 seconds हो गया था. Sorry, 4 minute का था, long less. Guys, round of applause. Sorry, yeah. I felt bad, dude, but sorry, that's a part of the job description of being a host. I felt really bad. I know you wanted to read, but we don't have time. But thank you so much. Thank you. How long have you been writing for? कैसे लिखना शुरू किया आपने? मैं 1.5 साल से लिख रहा हूँ। 1.5 साल से. And परफॉर्म करना कब शुरू किया? 3 महीने already. और इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो. I love you and I love the fact that. ये थर्ड परफॉर्मेंस है। Third performance, guys. Actually, round of applause. Dude, third performance में. Great job. मेरा third performance में इधर perform कर रहा था. I'm not even kidding. The third time I ever performed, I was so scared to look at 50 people. I had like a friend of mine who was standing here. I was like, hey bro, तेरे से ही बात करूँगा मैं. But great confidence. And कैसे लिखना शुरू किया? What? मतलब मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे फ्रेंड्स बहुत हैं, उनके ब्रेकअप हुए, उनके सुन के मैंने लिखना शुरू किया। What is this outsourcing emotion? मतलब ऑब्जर्वेशन के हिसाब से लिखा। काफी influenced है. Like I love he's going through. लड़ना, please. Like he's taking his friend's phone, messaging his girlfriend, you bitch. तूने क्यों किया ऐसे? And the girlfriend was like, क्या? Nice.
Like, I think in a fight, he's that kind of like, oh, I wouldn't take that, bro. I think he's like that guy. Quietly writes. Fuck, actually? But this content, ठीक है. Like, if I fight with my girlfriend, I tell her, baby, 2 more days. Because I'm not done with my story. But, वो तो like, तू लड़. Continue. Fuck. I have a very bad joke. His name, huh? तेरा नाम जले है क्योंकि तू नमक छिड़क रहा है. Fuck, y'all shouldn't have appreciated that, dude. I'm judging y'all more than I'm judging myself. But it's okay, great. Round of applause for Tabrezi. Thank you so much. We'll keep... Wow. 3 more people. Guys, this is not a comedy show. How do we have so many people for poetry? That's nice. Hi. Settle in. Hi, कुछ मंगाओ ठंडा पानी. All good. You'll only have to pay. I'll just order it for you. Habitat Canteen, great food, guys. I like Harsh, a friend of mine, he says this. I also recommend everything. I've tried everything. पढ़ा हूँ यहाँ पे से 2 साल से. खाया सब कुछ. अरे, 1 more person. Nice. Hi. Wow. Houseful. क्या बात है. Great. Hi, let me just catch you up with what you've missed so far. Poetry. You're caught up. Hi, what's your name, all 3 of you guys? You've just walked in. Arya? Srishti? Who's performing out of the 3 of you? None? Who you have come to support someone? Who? He's a... Huh? वो ही नहीं है. Who have you come to support? You don't know the name or what? No, say. His name is Seth. Huh? His name is Seth. Ali Khan. I got excited for a second, bro. You never know. This is Habitat. People come. वो कर रहा होगा कुछ. Wow. Who knows? Huh? Saif bhai. Round of applause. Saif bhai आ गए. वो पीछे छोड़ गए. Oh, I love, even you're an Indian. Oh, this is so unplanned. Great. Oh, dude, I'm so excited for the rest of the show. You guys are so nice. And I have ADHD, so I'll just keep like talking to everybody. Great. So, hi, you're performing? Yes. Great, good to know. Sit. You can join your friends. It's okay. I'll let you sit with them. आप बैठ जाइए. कहीं भी बैठिए. Thank you. Okay, great. I just feel थोड़ा माहौल थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो एक शेर तो बनता है. शेर नहीं है, एक ख्याल है. 2 लाइन का ख्याल है कि तेरी सूरत इतनी सोनी हर दीवाना तुझ पे मरता है. कि तेरी सूरत इतनी सोनी हर दीवाना तुझ पे मरता है. एक नज़र मुझ पे भी तो डाल पगली, ये मजनू भी तुझे अपनी दिल की बात कहने से डरता है. Please, can we please welcome our next act for the evening? Please give it up for Neha. All the way from the 1.5 row. ओके. नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी को. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे मॉम नहीं है. माई मॉम डैड, आई डोंट हैव बोथ ऑफ देम. तो शुरुआत उनसे करते हैं. हर किसी को मिले जन्नत, ये किस्मत इतनी मेहरबान नहीं होती. हर किसी को मिले जन्नत, ये किस्मत इतनी मेहरबान नहीं होती. तुम्हें मिली है तो कद्र करो, हर किसी के नसीब में माँ नहीं होती. बहुत शुक्रिया. सारी बुरी बलाओं को बेअसर करती है. सारी बुरी बलाओं को बेअसर करती है. माँ बाप की दुआएं कुछ ऐसा असर करती हैं. शुक्रिया. तो शुरू करते हैं.
एक पीस है जो बहुत टाइम से आधा अधूरा था, तो आज सोचा कि मैं आधा पढ़ देती हूँ, कोई ना कोई इसे मुकम्मल कर लेगा। किसी का होकर फिर उसे दूर जाना ज़रूरी है क्या? किसी से इश्क करके उनका दिल दुखाना यूँ ज़रूरी है क्या? किसी के ख्वाबों को सजाकर उनकी दुनिया बिखेर जाना ज़रूरी है क्या? किसी की मुस्कुराहटों को यूं आंसू में तब्दील करना ज़रूरी है क्या? ये ज़रूरी तो नहीं कि तुम्हारा हर फैसला सही और वो शख्स गलत हो। ये भी तो हो सकता है कि उसकी सोच तुमसे बेहद अलग हो। शुक्रिया। एक नज़्म है, उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। अब तो तुम्हारे बिना ही गुजारा करना है, अब तो तुम्हारे बिना ही गुजारा करना है, मुझे इस नज़्म में ज़िक्र तुम्हारा करना है। मेरे हिस्से की मोहब्बत मैंने तुम पे लुटा दी, अब इश्क कहाँ हमें दोबारा करना है। शुक्रिया। तुम्हारे बाद इन आँखों में अब आंसू पलते हैं, तुम्हारे बाद इन आँखों में अब आंसू पलते हैं। खैर बिछड़ जाएं परिंदे तो फिर कहाँ मिलते हैं। तुम्हारे बाद हम मुरझाए थे, मुरझाए ही रहेंगे, भला मुरझाए हुए फूल फिर कहाँ खिलते हैं। फिर भी तुम्हारी खुशियों की हम दुआ करते हैं, क्योंकि टूट कर चाहने वाले ऐसे ही हुआ करते हैं। तुम्हारे जाने का गम इसलिए भी नहीं किया मैंने, आखिर बेवफा भी तो किसी से वफा करते हैं। खैर मेरे बगैर तुम खुश हो तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी। मैंने कांटों को चाहा तो मेरी फूलों से दोस्ती क्या होगी। सोचो जिस लड़की ने तुम्हें जाते हुए रोका तक नहीं, इससे बढ़कर उस लड़की के लिए खुदकुशी क्या होगी। खैर मेरी छोड़ो, मेरे लिए जीना तो अब मजबूरी है, मगर तुम हंसते रहना, क्योंकि तुम्हारा हंसना मेरे लिए ज़रूरी है। तुम तो अपनी मोहब्बत कहीं मुकम्मल भी कर लोगे, मगर मेरी तरफ से मोहब्बत तो अधूरी थी, अधूरी है। तुम जिसके साथ भी रहो अपनी खुशियाँ उसके साथ आधी कर लेना। मेरी बात सुनो तो उसी शहज़ादी के साथ तुम शादी कर लेना। मोहब्बत सोची थी, अब मोहब्बत के अंजाम का क्या करेंगे। तुम्हें जान जान कहती थी, तुम्हारी बात अब अपनी जान का क्या करेंगे। और ये आखिरी लाइन कि खुदा करे मेरी जान उसी रात निकले, खुदा करे मेरी जान उसी रात निकले, जिस रात मेरी गली से तेरी बारात निकले। Thank you, firstly, for being comfortable enough to be vulnerable to talk about your parents. I'm sorry, and thank you for very brave of you to talk about it on stage. And great pieces. आपने लिखना कैसे शुरू किया? ऐसे ही random 2021 में। क्या बात! I love the stories today. Wow, pen. हो गया. I asked a friend, how do you start writing? Suddenly. I was like, whoa! How do you do that? Like कुछ तो होगा. Like what drove you? I like reading books, तो उससे थोड़ा Oh, fair enough. So that comes from that. I hate reading. I don't. Yeah, I hate reading. सही बात नहीं है, but ठीक है. ये एटीट्यूड चाहिए लाइफ में. हम नहीं करते तो सही बात है. Different. Sound like such a Delhiite right now. I don't know why. हाँ. Anyway, तो just suddenly. तो आप क्या? What do you like reading? हाँ वैसे. Nice. Yeah, it's good. तो वैसे ही I think a lot of people also start writing. Nice. Round of applause. Neha ji, thank you so much for sharing. We'll keep. Come on. हाँ जी. उन्होंने एक बात कही कि वो जो ज़रूरी था क्या, उन्होंने एक बात कही तो बोले कोई मुकम्मल कर देगा। तो जॉन एलिया साहब ने लिखा है
कि कौन सीखा है फकत बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। क्या तो दैट इज द आंसर फॉर आई थॉट ऑफ Okay. Thank you. Moving on. Sorry, man. I was just like, what just caught me off guard? You are not used to it. What am I not used to? Heckling? It's fine, dude. Fuck, we'll move on. I forgot the next person. No, I didn't. I got it. Okay, come on. Keep the applause going. Come on. Louder for Deepak ji. प्लीज एक बार होस्ट के लिए जोरदार तालियां बजा दो। प्यारा बंदा है। हाँ भाई, कैसे हो? ठीक है सब? ऑलराइट। तो मतलब एक शेर पढ़ूँ, कभी मिले तो उसको बता देना फिर कि मेरे बाद अब किसके पास जाकर अपनी झूठी कहानियों के पर्चे बांटोगे। मेरे बाद अब किसके पास जाकर अपनी झूठी कहानियों के पर्चे बांटोगे। बस भी करो यार, प्यार के नाम पे किस किस का चूतिया काटोगे। सॉरी। एक और शेर है कि हर इंसान गम में है, हर इंसान गम में है, हर इंसान गम में है, समझ नहीं आता मोहब्बत का हिसाब मुझे। हर इंसान गम में है, समझ में नहीं आता मोहब्बत का हिसाब मुझे। हर 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 किताब के पीछे गुलाब की पंखुड़ियाँ मिल रही है। हर किताब के पीछे गुलाब की पंखुड़ियाँ मिल रही है। किसी ने आधे दाम में बेच दी है किताब मुझे। उसके आगे आप में से कितने लोग ऐसे जो पीजी रह रहे मुंबई में या फिर पुणे में, जहाँ से भी आए? यू आर द ओके। एक कविता है जिसका नाम मैंने गांव से आया वो लिखा है। तो इट गोज़ लाइक कि हक की ज़मीन है मेरी गांव में, हक की ज़मीन है मेरी गांव में, या रेंट पे ठिकाना है। हक की ज़मीन है मेरी गांव में, या रेंट पे ठिकाना है। घर में पड़ोसी खाना खाते हैं, या पेइंग गेस्ट का ज़माना है। कि वहाँ पैदल चलने वालों को दरवाजे तक छोड़ने वाले मिलते हैं, वहाँ पैदल चलने वालों को दरवाजे तक छोड़ने मिलते हैं। किसी से लिफ्ट मांगी तो पता चला यहाँ सब मीटर से चलते हैं। कि कभी आना गांव मेरे ऐसे मौसम में वहाँ मशक्क़त होती है। कभी आना बारिशों में गांव मेरे ऐसे मौसम में वहाँ मशक्क़त होती है। घर डुबा देती है यहाँ की बारिश, अब मुझे पानी से दिक्कत होती है, अब मुझे पानी से दिक्कत होती है। कि थक गया हूँ वहाँ से बोल बोल कर कि सब ठीक चल रहा है, थक गया हूँ वहाँ से बोल बोल कर कि सब ठीक चल रहा है। कोई गांव जाए तो सड़क से पूछ लेना, मुझे शहर बेच के उसे क्या मिल रहा है, मुझे शहर बेच के उसे क्या मिल रहा है। थैंक यू। और एक छोटा पीस है जिसका नाम है मैं बनारस का घाट कोई। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़, आपके दिल तक पहुँचे तो प्लीज़ तवज्जो देना। कि मैं पहाड़ियों सा महक रहा हूँ, तुम केदारनाथ बन जाओ ना। मैं पहाड़ियों सा महक रहा हूँ, तुम केदारनाथ बन जाओ ना। बर्फीली घाटियों सा सफ़ेद इश्क मेरा, तुम लद्दाख कोई बन जाओ ना, तुम लद्दाख कोई बन जाओ ना। कि इस खामोशी भरे जहाँ में तुम पायल कोई बन जाओ ना, इस खामोश भरे जहाँ में तुम पायल कोई बन जाओ ना। गले में पहन के घूमूंगा तुम्हें, तुम घुंघरू सी चनक जाओ ना, तुम घुंघरू सी चनक जाओ ना। मैं बरेली सा महक रहा हूँ, मैं बरेली सा महक रहा हूँ, तुम झुमका कोई बन जाओ ना। मैं बरेली सा महक रहा हूँ, तुम झुमका कोई बन जाओ ना। आई हैव टाइम ना? सॉरी। हाँ, मैं बरेली सा महक रहा हूँ, तुम झुमका कोई बन जाओ ना। नज़र लग जाए मुझे भी तुम्हारे साथ, मुझे पहन के जुल्फ़े हटाओ ना, मुझे पहन के जुल्फ़े हटाओ ना। कि मैं बनारस का घाट कोई, तुम गंगा सी छू कर जाओ ना। मैं बनारस का घाट कोई, तुम गंगा सी छू कर जाओ ना। अस्तियाँ बहे मेरी तुम्हारे साथ, चाहे मौत बन कर आओ ना, चाहे मौत बन कर आओ ना। दिल सपनों का जहाँ हकीकत में मांग रहा है खुदा से, कि दिल सपनों का जहाँ हकीकत में मांग रहा है खुदा से, तुम भी उसे समझाओ ना। मैं दोस्तों से झूठ बोल कर आया हूँ तुम्हारी गली में, तुम भी खिड़की में आओ ना, तुम भी खिड़की। दैट्स ऑल फ्रॉम अस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। खिड़की पे तो पता नहीं आएंगे कि नहीं, कबूतर बहुत आते हैं। नाइस। कैसे लिखना शुरू किया आपने? एक्चुअली मैं जब फाइनल ईयर में था तब से स्टार्ट किया।
ओपन माइक्स वगैरह भी जाता था ऑडियंस बन के। आप क्या किए हैं? व्हाट फाइनल ईयर? MBBS. नाइस. व्हाट फील्ड? अभी दिया है नीट पीजी। अच्छा, क्या बात है. I don't want to crack a neat joke, so we're just gonna step away from it. It's getting recorded. I have just started my career, and I'm in the appropriate color. Cool. Fuck, I'm gonna get cancelled so soon. I don't like this. How, like, आपने भी suddenly start किया? Nice. So, do you like reading? Yes. Okay, cool. That makes more sense, right? Then just like suddenly, अरे shit यार, वो भी कहीं सही थी. But anyway, nice. Thank you, round of applause, and we'll call on the next guy. Yeah, please give it up for Aditya. He's coming to the front row. Keep it going. Just button वहाँ पे. There's a button right here. Am I audible? हेलो. तो अभी गणेश चतुर्थी चल रही है, तो उस पर मैंने कुछ लाइनें लिखी थी, उससे स्टार्ट करूँगा मैं. कि खिड़की खोल तुम देखो ज़रा आज विघ्नहर्ता आए. कि खिड़की खोल तुम देखो ज़रा आज विघ्नहर्ता आए हैं, लड्डुओं की टोकरी अपने संग लिए खुशियों का बस्ता फिर भर लाए. कि खिड़की खोल तुम देखो ज़रा आज विघ्नहर्ता आए हैं, खुशियों की टोकरी अपने संग लिए खुशियों का बस्ता फिर भर लाए हैं. यूं ही थोड़ी ना कोई भक्त इनके पास अपनी सारी दुविधाएं लेकर आता है. कि यूं ही थोड़ी ना कोई भक्त इनके पास अपनी सारी दुविधाएं लेकर आता है. सुलझ जाते हैं जब गम ये सारे तो हंसता हंसता जाता है. तो ये कुछ लाइनें लिखी थी. अब मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ वो मैंने ऑब्ज़र्व किया है मेरे आसपास. तो ये कहानी है उस शख्स की जो करीब 70-80 साल का है. इस शहर में अकेला रहता है. उसकी वाइफ गुज़र चुकी है और लोगों से ज़्यादा बात नहीं करता. लोग उसके बारे में अजम्पशंस बनाते हैं कि ये बहुत खड़ूस है, ये किसी से बात नहीं करता. लेकिन उससे मतलब लोगों को पता नहीं कि उसके अंदर वो कौन सी लड़ाई चल रही है, वो किससे जूझ रहा है. तो ये जो कहानी, ये जो पढ़ने जा रहा हूँ मैं, वो चीज़ अपनी पत्नी से बात करता है अकेले में. मतलब अभी अकेलेपन में कोई कुछ ना कुछ तो करेगा. तस्वीर हो गई किसी से, तो तस्वीर से बात कर ली कि तुम्हारी बड़ी याद आती है. तो वहाँ पर उस पर कुछ लिखा था मैंने कि कहानी का नाम है यादें और तुम. तो अभी जो मैं सुनाऊंगा वो उन्हीं का पॉइंट ऑफ व्यू है. तो शुरू करता हूँ कि सुबह उठता हूँ पौधों को पानी दे फिर चाय पीने बैठ जाता हूँ. सुबह उठता हूँ पौधों को पानी दे फिर चाय पीने बैठ जाता हूँ. न्यूज़पेपर की खबरें देख फिर यूं ही मुस्कुराता हूँ. अकेला हूँ इसीलिए सारा वक्त खुद के साथ ही बिताता हूँ. शाम होती है फिर तुम्हारी तस्वीर की तरफ लौट जाता. रातों को तुम्हारी तस्वीर साथ लिए सोता. लगता है जैसे तुम साथ हो मेरे, सिर्फ आंखों या दिल में नहीं मगर हर एहसास में मेरी. कभी कभी अकेलेपन में तुम्हें याद कर रो लिया करता. और तुम्हें याद है वो गाड़ी जिसमें हम शाम में बैठ घूमने निकल जाया करते थे. ज़रा सी धूल जम गई है उस पर खाली वक्त मिलने पर उसे धो लिया करता. आजकल मोहल्ले वालों से मैं ज़्यादा बात नहीं करता. शायद इसीलिए वो मुझे खड़ूस बुलाते. मुझे मोहल्ले में चलता देख के मोहल्ले के बच्चे ना जाने क्यों ज़रा से सहम से जाते. सच कहूँ तो तुम्हारे जाने के बाद आजकल कुछ करने का मन ही नहीं करता. और तुम्हें याद है वो सब्जी वाला जिससे मैं सिर्फ 5 रुपए के फ़र्क के लिए लड़ता था, अब नहीं लड़ता. तुम्हारे जाने के बाद इन खाली कमरों में तुम्हारी कमी बड़ी खलती है. कि तुम्हारे जाने के बाद इन खाली कमरों में तुम्हारी कमी बड़ी खलती है.
तुम्हारे यादों की एक बर्फीली दीवार है मेरे दिल में, जो वक्त गुजरने पर भी नहीं पिघलती। खैर, इस वक्त के गुजरने के बाद मैं तुम्हें फिर मिलूंगा, और तुम कहती थी ना कि मैं आलसी हूँ, चलता नहीं। वक्त आने पर जन्नत में ही सही मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। एक ये कहानी थी, और मैं एक पोएट्री है मैं सुनाना चाहूँगा यहाँ से। एक छोटी सी मतलब आपको पोस्टमैन पता होगा। पोस्टमैन के उस दौर का क्या होता था कि संदेशा पहुँचाया जाता था और पहुँचने में काफ़ी वक्त लगता था। तो उस डाकिये के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखा है, तो ये उसी का पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि लोगों तक अपनों के खत पहुँचाना, लोगों तक अपनों के खत पहुँचाना, वो दरवाजे पर ही उनका वो खत खोल पड़ मुस्कुराना देखा है मैंने। किसी की उम्मीद ख्वाहिश सपना बनकर आते हैं ये खत, किसी की कई दिनों से खोई मुस्कान आंसुओं से भर के लाते हैं। दूर तक संदेशा पहुंचाने के लिए लोग मुझसे उम्मीदें लगाया करते हैं, वो उनसे कितना प्यार करते हैं ये खत में लिखकर जताया करते हैं। वैसे तो मैंने सच में एक भी खत खोलकर नहीं पढ़ा, खत में क्या होगा ये देते वक्त उनके चेहरे ही बताया करते। खत पहुंचाने के लिए मैंने मेहनत दिन रात की, जो शायद कुछ महीनों से अधूरी रह गई थी, मैंने पूरी वो हर मुलाकात की। किसी की खुशी का न्योता लाया हूँ तो किसी के जंग में शहीद होने की खबर लाया हूँ। किसी को खुशी से झूमते तो किसी को आंसुओं से खत भिगोते पाया हूँ। मैं डाकिया हूँ उनका खत। शुक्रिया। Don't start a poem at 4 minutes. After I've said no. He looked at me like poetry. I said no. Okay, so. And okay, I felt bad for like, I was gonna tell him, I was like, nah, don't, like, I didn't want to fuck with the poetry, so I didn't like switch off the mic or anything. But next time, just be nice. Cool? Sorry. I said this is the start of the show, na? That as soon as 4 minutes, don't look here. But it's fine, just, I'm messing with you. I mean, it's trying to be funny by saying serious shit. Because confrontation, I can't do. nahi hota maise. Don't take time, please. We've got about 7 more performers, bro, and we've got only half an hour left. Okay? I love the fact that there's so many people. Don't get me wrong. Cool? I know how you guys started writing. Can you just, for the people that, you know, have just come, how did you start writing? कैसे लिखना शुरू किया आपने? मैंने अपने दोस्त को लिरिक्स लिखते हुए देखा था, तो उससे इंस्पायर होकर मैंने अपनी राइटिंग शुरू की है। Correct. सर भी लिरिक्स लिखते हैं. He saw, he's like, मुझे भी लिखना है. I love it, I love it. But great, thank you so much. Can we call on our next act? Yeah. Y'all know what to do, y'all know what to do. Please give it up for Darpanji. It's coming all the way from the back. Applause should not stop until the performer gets on stage. We're a supportive audience. I love the fact. मेरा नाम, am I audible? मेरा नाम दर्पण चंडालिया है। मैं उदयपुर राजस्थान से आता हूँ। पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ और पैशन से कवि हूँ। तो मेरी कविता का शीर्षक है आवाज़। इस आवाज़ को मैंने नेचर के कुछ एलिमेंट्स में डिस्कवर किया है या अपनी निजी ज़िंदगी में जहाँ जहाँ महसूस किया है उसके बारे में है। बहुत ही रूमानी ऐसी कविता है, तो आइए आगाज़ करते हैं। मैं सुरों के मुरब्बे में तुम्हारी आवाज़ की इलायची ढूंढ रहा हूँ। आवाज़ जिसमें पहाड़ी दरख्तों का राब्ता है परिंदों से। उठती है आह जैसे बारिश की बूंदों की तुम्हारी पेशानी चूमने पर। जैसे चटोरी तुम कोयल के गले से सारी मिस्री चट कर गई हो। क्या सीख ली हैं तुमने लोरियां झीलों से? क्या सीख ली हैं तुमने लोरियां झीलों से? क्या सुरों की कोई नई नस्ल इजाद की है तुमने? कल रात बिलखती चांदनी को चुप कराते देखा था तुमने। चांदनी अक्सर सूर्योदय पे थोड़ी उदास रहती है कि उसका मंच छीन लिया जाता है। एक कलाकार से उसका मंच छीन लेना कितना दुखद है। तो कल रात
बिलखती चांदनी को चुप कराते देखा था तुम्हें, कितनी नज़ाकत से तुमने अपने ज़ुबां पे पूरी रात ओढ़ ली थी। जैसे पढ़ ले कोई खुश्क आँखों में दफन उदासी, जैसे पढ़ ले कोई खुश्क आँखों में दफन उदासी, सीने पे रखे सर और दिल में घर कर जाए। जैसे ऊन में लिपटा पुराना कोई खत मिल जाए। और मैं छोटे शहर उदयपुर से आता हूँ, तो ये अगली कुछ पंक्तियाँ उन सभी छोटे शहर के लड़कों के लिए। हो बड़े शहर से सुलह मेरी, काफ़ी हमेशा एक पशुपेश रहता है छोटे शहर के लड़कों में कि ये किस बात की जल्दी है। तो हो बड़े शहर से सुलह मेरी, मेरे सुकून को मुझ पर खोया हुआ हक मिल जाए। तुम्हारे गीतों की शीशियों को सीने से लगा, तुम्हारे गीतों की शीशियों को सीने से लगा, मैं तुम्हारी आवाज़ का उद्गम ढूंढ रहा हूँ, द ओरिजिन ऑफ योर वॉइस। तुम्हारे गीतों की शीशियों को सीने से लगा, मैं तुम्हारी आवाज़ का उद्गम ढूंढ रहा हूँ, मैं सुरों के मुरब्बे में तुम्हारी आवाज़ की इलायची ढूंढ रहा हूँ। Me after drinking too much. Sorry, dirty joke. दर्पण जी, थैंक यू सो मच फॉर परफॉर्मिंग। कितने टाइम से लिख रहे हैं आप? कैसे लिखना शुरू किया आपने? मेरे दोनों पेरेंट्स ऑथर हैं। क्या बात है। तो मैं आई थिंक 7-8 साल से लिख रहा हूँ, एंड आई इवन हैव अ पब्लिश्ड बुक, इट्स ऑन अमेज़न। नाम? हथेलियों में उगते गुलाब। Guys, please do buy it. It's a beautiful name. हथेली में उगते गुलाब, नाइस। गुलाब में भी कांटे होते हैं। That's why I don't hold anyone's hand. I love you, baby. I'm talking to my girlfriend. She's watching at home. But great. Thank you. And आप कितने टाइम से लिख रहे हैं? 8-10 साल हो गए। 8 साल. And what have your parents been like published authors, or like what kind of authors are they? They have written around 17-18 books. Combined or individually? Individually, I'm saying, because Whoa. both of them are into literature. Names? डॉक्टर हेमेंद्र चंडालिया मेरे फादर का नाम, हाँ जी. और डॉक्टर प्रमिला सिंह भी मेरी मदर का नाम। Nice. तो मैंने उसी वजह से 10वीं के बाद से लिखना शुरू किया। क्या बात है? And how old are you? I'm 32 now. Okay, round of applause for Darpan ji. Thank you so much. I have a short piece before we call on the next act. Yeah, is that okay? And it's in English, so if you guys do enjoy it, please do snap along. थोड़ी हिंदी भी डाली है. I'm trying to do Hindi. I'm trying to get a grasp on the language. So apologies for the pronunciation. It's called It's Okay to Feel Empty. I want to let go. I tried everything. There's no solution though. मुझे पता है कि हमारी कहानी बस यहीं तक थी, because each disagreement turns into a fight. I know it's time to set the sun on my love and there's no way to reconcile. क्योंकि दिल नादान है मेरा. He's been home to a few rent free. लेकिन सब जल्दी चेकआउट कर लेते हैं यार. And they leave him broken easily. तो मुश्किल हो जाता है दिल संभालना when it's used to a pattern of good morning texts and how was your day. But it's important to explain to my heart that sometimes it's better this way. It's better to feel free from the toxic routine and get some space. अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना चाहता हूँ यार. I'll walk at my own pace. थोड़ा खाली तो लगेगा दिल, but he'll understand gently that sometimes it's okay to let go. It's okay to feel empty. Thank you. Please keep the applause going for our next act of the evening. Keep it going until I find it, because I've forgotten the name. Keep it going for Dhirendra ji. Where is he? Right there. Come. Sorry. Apologies if I mispronounce your name. ये mic सही करो। हाँ, ले लो. Perfect. Guys.
सब राम के बारे में सुनाते हैं, मैं रावण के बारे में सुनाऊंगा। और कॉन्टेक्स्ट रहेगा कि रावण अपने आप को बहुत ही अहम मानता था, सब अपने लिए करता था। तो वहाँ से पंक्तियाँ चालू करता हूँ कि इसको सब चीज़ का वरदान था, किसी कोई इसको मार नहीं सकता था अपार्ट फ्रॉम इंसान और वानर जात। तो वहाँ से लिखता हूँ कि ब्रह्मांड की आवाज़ से है रहा पुकार तुझे, और तुच्छ मात्र मनुष्य हो तुम, क्या लोगे बिगाड़ तुम, और क्या करोगे जानकर हुआ कैसे महान मैं, कर तपस्या शिव जी बना सर्वशक्तिमान मैं, आन से बान से रहता हूँ मैं शान से, और दशानन बना नहीं किसी के एहसान से। संगीतकार मैं बड़ा अहम मेरा है खड़ा, क्रूरता से लड़ रहा पिता इंद्रजीत का, शास्त्र वेद जानकर साधना में मानकर शिव भक्त चल पड़ा जीत का लिए घड़ा। शिव तांडव स्तोत्र हूँ ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हूँ, कुछ गलतियाँ हैं मेरी जिनसे मैं अबोध हूँ। समुद्र पार है किनारा महल मेरा स्वर्णकारा, और जीवन का लक्ष्य बना ईश्वर का अस्तित्व पाना। अनंत शक्ति मुझ में फले देव दानव मेरे तले, जगत का मैं स्वामी बनूं आज्ञा शिव जी की चले। ब्रह्म का वरदान है मृत्यु ही महान है, हार जीत कुछ नहीं बस विजय का फरमान है। सत्य झूठ से परे है राम युद्ध में खड़े हैं, हार देखने मेरी देवता सभी अड़े हैं। खुद से नहीं हारना है युद्ध में बस मारना है, और वंशज का मोह क्या बस राम को पछाड़ना है। हनुमान सुग्रीव जामवंत, हनुमान सुग्रीव जामवंत सारे उनके संग थे, दिखते वो अलग सभी पर सारे उनके अंग थे। पाप मेरे इतने सारे कहाँ उनके अंत थे, खत्म होंगे सारे पाप मेरे बसे कंत से। और रची कैसी माया है वट वृक्ष की छाया है, करने विनाश मेरा विष्णु का अवतार देखो आया है। कि लड़ूंगा मैं शान से पुष्पक विमान पे, और माया का वंशज हूँ मरूंगा भी शान से। कि अस्तित्व खत्म हुआ मेरा कुछ भूल कुछ पाप से, और दशानन मरा अपने बुद्धि के अभाव से। थैंक यू सो मच। तो समय बचा हुआ तो मैं कुछ और कहना चाहूँगा कि लोग जो भी यहाँ पे आए हुए हैं लोग लिखते हैं, बट उस कहानी में सहता कोई और है, पर लफ्ज़ों के ज़रिए दिल दास्ता कहता कोई और है। तो वहाँ से कुछ लिखा था कि बयान, एक मिनट, कि टूटे हुए दिल को जोड़ूं मैं कैसे, और बयाने इश्क की बातें करना छोड़ूं मैं कैसे, और बिखर सी गई है ज़िंदगी मोतियों के जैसे, इन मोतियों को धागों में पिरोऊं मैं कैसे। सैलाब सा उमड़ रहा जो दर्द सीने में, सैलाब सा उमड़ रहा जो दर्द सीने में, उन्हें आंसुओं संग अकेला छोड़ूं मैं कैसे, और तेरी बेवफाई की बातें बहुत ही बड़ी हैं, उन्हें चंद लफ्ज़ों में बोलूं मैं कैसे। और सब कुछ प्लान्ड होता है, कोई अचानक से नहीं होता है। कि ना कहने की वजह को भी उसने संजोया था ऐसे, सब संग होकर भी न जाने मैं खोया था कैसे। वो दर्द वो लम्हा वो हाथ सा भुलाऊं मैं कैसे, और टूट गया जो दिल उसे समझाऊं मैं कैसे। टूटने के बाद सब लोग दोस्त यारों के पास जाते हैं, तो वहाँ से वो तो यार दोस्त हैं जो साथ निभाते हैं, न कभी दिल की सुनते हैं न कभी अक्ष बहाते हैं। उनकी यारी का मोल मैं चुकाऊंगा कैसे, और दर्द दिल की दास्तां उन्हें सुनाऊंगा कैसे। बेरहम बेशरम बेहया बेख्याली की बातें उसके बारे में, बेरहम बेहया बेशरम बेहया बेख्याली की बातें उसके बारे में बोल पाऊंगा कैसे, और यादों की किताब जो ढक सी गई है उन यादों भरे कमरों को खोलूं मैं कैसे। और काफ़ी बेइज्जती हुई थी उसकी कि बुला के अपने घर पे जिल्लत दिया है जो, बुला के अपने घर पे जिल्लत दिया है जो, उस जिल्लत भरे पल को बुलाऊं मैं कैसे, और आंसू सबूत है मेरी सच्ची मोहब्बत के, ये भी तुझे समझाऊं मैं कैसे। थैंक यू सो मच, दैट्स माय टाइम, थैंक यू सो मच, यू विल लवली ऑडियंस। Guys, keep it going. And keep your phones on silent. For someone. What I loved is he saw he had 3 seconds left, okay? So he like, and dot 4. I loved it, yeah. Brilliant. And कितने टाइम से लिख रहे हैं? How did you start writing? General question. Great answer. लिखना तो जब क्या बात है. For people that didn't get the joke, too bad. पोइट्री लिखना कैसे शुरू किया? बचपन से ABCDEE नहीं? हाँ, अच्छा ये अभी 8 आपने, सॉरी आई जस्ट कुडंट हियर हिम।
I know it's sounding like a class, but I couldn't hear shit you said. February आपने लॉन्च किया अपने आप को क्या? अच्छा registered. I heard I launched myself. Then I started writing. I was like great. अच्छा तो आपने पहले open mic के लिए register किया. Which was the first open mic you attended? और आप कहाँ से हैं? आप भी बॉम्बे के बाहर से आए हो? मीरा रोड तो बॉम्बे में ही है. अरे यार I consider it Bombay. It's okay. It's nice that way. Like it's okay for people to live in delusion, dude. कोई थाने से भी आता है I'm from Bombay. हाँ ठीक है bro, तू है. You identify as थाने ले. Pronouns are toll, naka. It's 2024, dude. Anything's possible. But great. Thank you so much for coming. Thank you. Round of applause once more, yeah? And keep it going for our next act of the evening. Please welcome on stage Amit Ji. Amit Ji. मेरी पोइट्री का शीर्षक है कफन। मैं कफन बेचता हूँ, मैं कफन बेचता हूँ, दूसरों के चिताओं पर अपनी रोटियां सेकता हूँ। मैं कफन बेचता हूँ, मैं शांति का रंग बेचता हूँ, मैं कफन बेचता हूँ। जानता हूँ कि किसी का शौक़ हो तो मुस्कुरा लेता हूँ, यानी कि कोई मर गया तो मैं मुस्कुरा लेता हूँ। किसी का शौक़ हो तो मुस्कुरा लेता हूँ, मैं कफन बेचता हूँ। जानता हूँ कि हर कोई जीने की दुआ करता है, जानता हूँ कि हर कोई जीने की दुआ करता है, मैं खुदा को मरने की दुआ करता हूँ क्योंकि मैं कफन बेचता हूँ, मैं कफन बेचता हूँ। और एक है, मंदिर के दरवाजे बाहर से बंद है, मंदिर के दरवाजे बाहर से बंद है, भगवान अंदर से पुकार रहे हैं, भगवान अंदर से पुकार रहे हैं और हम पूजा में लगे हैं क्योंकि मंदिर के दरवाजे बाहर से बंद है। सुबह शाम रात दरवाजे बाहर से बंद ही है, सुबह शाम रात दरवाजे बाहर से बंद ही है और हम आस्था का दिया लिए खड़े हैं कि भगवान आएंगे, पर मंदिर के दरवाजे तो बाहर से बंद है। खुद के कामों की रिश्वत पड़ी है मंदिरों के दान पेटी में, खुद के कामों की रिश्वत पड़ी है मंदिरों के दान पेटी में, पर मंदिर के दरवाजे तो बाहर से बंद है। पंडित पेट फुलाए बैठे हैं, पंडित पेट फुलाए बैठे हैं और भगवान अंदर भूखे सोए हैं क्योंकि मंदिर के दरवाजे तो बाहर से बंद है। और एक है, ये पोइट्री है कि हम अर्थ के शुरुआत में भी नहीं थे और हम अर्थ के अंत में भी नहीं रहेंगे, हम कहीं तो बीच में हैं। उसके ऊपर लिखी है, हूँ अंतरिक्षा काला में, हूँ अंतरिक्षा काला में, ना अंत है ना शुरुआत में, ना अंत है ना शुरुआत में, जहाँ देखूँ वहाँ उजाला भी मैं, जहाँ देखूँ वहाँ उजाला भी मैं, आँख बंद कर लूँ तो अंधेरा भी मैं बस हूँ अंतरिक्षा काला में। ना किसी का अच्छा सोचता हूँ, ना किसी का अच्छा सोचता हूँ, ना किसी के बुराई के पीछे में, मैं बस हूँ अंतरिक्षा काला में। मैं कारण हूँ इस सृष्टि के जीवन का, मैं कारण हूँ इस सृष्टि के जीवन का, जिसका करना अंत मुझे है, मैं बस हूँ अंतरिक्षा काला में। और एक है, मैं ही तो हूँ वो भगवान का सत्य, मैं ही तो हूँ वो भगवान का सत्य और उसका अस्तित्व भी मैं, जो मैं ना रहूँ तो कुछ भी नहीं। मैं ही तो हूँ वो सांस और धड़कन भी मैं, जो मैं ना रहूँ तो कुछ भी नहीं। मैं ही तो हूँ वो लालच और भूख भी मैं, जो मैं ना रहूँ तो कुछ भी नहीं। मैं ही तो हूँ वो शुरुआत का कण और अंत भी मैं, जो मैं ना रहूँ तो कुछ भी नहीं। और एक है, हो गया एक 30 सेकंड।
जन्म से क्या मिला, कर्म से क्या मिला। जन्म से क्या मिला, कर्म से क्या मिला। जन्म से जात मिली, कर्म से मौत मिली। जन्म से जात मिली, कर्म से मौत मिली। मौत से मुक्ति मिली, जन्म से पिंजरा मिला। मौत से मुक्ति मिली, जन्म से पिंजरा मिला। पिंजरे से आज़ादी मिली, पिंजरे से आज़ादी मिली। आज़ादी से मिला ये संविधान। संविधान से जात हटी, जात से ना हटेगा ये संविधान। भगवान से जात बनी, जात से मिला। ऐसे खत्म कर लेते। क्या मिला? भगवान से जात मिली। लास्ट लाइन खत्म करके जाओ। भगवान से जात बनी, जात से मिला सबको काम। काम से भेदभाव हुआ, ना इंसानों में रहा राम। राम की थी ये जन्मभूमि, राम ना ले पाए। मस्जिद भी थी वहाँ पर राम ना कुछ कर पाए। राम राम कहते थक गए, पर राम के कोई अवतार ना आए। संविधान भी कोई अवतार ही है, जिसने राम को राम का हक दिलवाए। काफी लंबी लाइन थी। But guys, keep it going. Thank you so much. We'll keep the applause going and keep it rolling because you got about 3-4 acts. Keep it going for Ayushi, all the way from the second row. Keep it going, come on. Nice crowd. Hello. Am I audible? Yeah, तो my first piece इसका नाम है दुनिया। तो रेखाओं का ये घर, रेखाओं का ये घर हम जिसको दुनिया कहते हैं। ये बस्ती है हम में जितना, हम इसमें क्या उतना रहते हैं। रेखाओं का ये घर हम जिसको दुनिया कहते हैं। ये बस्ती है हम में जितना, हम इसमें क्या उतना रहते हैं। कि इधर दीवार है उधर है रेखा, वो परिंदा था क्या तुमने उड़ते देखा। इधर दीवार है उधर है रेखा, वो परिंदा था क्या तुमने उड़ते देखा। अरे रेखा बढ़ाओ दीवार चढ़ाओ, क्या करते हो इसको पंछी दिखते हैं। रेखाओं का है ये घर हम जिसको दुनिया कहते हैं। एक चीख अभी, थैंक यू, एक चीख अभी सुनी क्या तुमने, जाओ हमको क्या हम सोते हैं। एक चीख अभी सुनी क्या तुमने, जाओ हमको क्या हम सोते हैं। सोते हैं या मरते हैं, बस मरने को तो जीते हैं। रेखाओं का है ये घर हम जिसको दुनिया कहते हैं। कि किसका खून निकला माथा फूटा, एक आध अपना भी है शीशा टूटा। कि किसका खून निकला माथा फूटा, एक आध अपना भी है शीशा टूटा। पर हम कारोबारी पत्थर के, अपने तो पत्थर बिकते हैं। रेखाओं का है ये घर हम जिसको दुनिया कहते हैं। कि सुनो हरी भरी है नई फसल आई है, सुनो हरी भरी है नई फसल आई है। ये लकीर जहरीली मिटा पाओगे। कि सुनो हरी भरी है नई फसल आई है, ये लकीर जहरीली मिटा पाओगे। अरे क्या कहते हो पागल हो, लकीर पुश्तैनी यही रहेगी, भले फसलें खेत उजड़ते हैं। कि रेखाओं का है ये घर हम जिसको दुनिया कहते हैं। कि कागज़ जन्मे पेड़ से पेड़ बनाए कागज़, कागज़ जन्मे पेड़ से पेड़ बनाए कागज़। अरे छोड़ो पेड़ काटो पेड़, इनाम कागज़ चलना सरपट दौड़ते हैं। रेखाओं का है ये घर हम जिसको दुनिया कहते हैं। ये बस्ती है हम में जितना, हम इसमें क्या उतना रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है। तो टाइटल इज मैं मन से कितना बहरा था। कि चट्टानों सी मंजिल को हर पाकर देखा बस एक पत्थर, चट्टानों सी मंजिल को हर पाकर देखा बस एक पत्थर। कश्ती लेकर पास से गुजरा, हर पत्थर खुदरा गहरा था। वो चमकीली चट्टान है कहाँ, ये पत्थर मिथ्या कह रहा था। मैं मन से कितना बहरा था। कि ये तारा मेरे हाथ में जो है, दूर ही से दिखता रोशन क्यों है। ये तारा मेरे हाथ में जो है, दूर ही से दिखता रोशन क्यों है। जिसे पाने की चाह में दौड़ूं फिरूं, वो इंतज़ार में मेरे ठहरा था। और आंखें मूंद सोचता गुलाब, कि आंखें मूंद सोचता गुलाब, और बाग ही में मैं रह रहा था। मैं मन से कितना बहरा था।
और महाभारत में जब श्री कृष्ण ने उसको पार्थ को ज्ञान दिया था गीता का, तो उनको कुछ रियलाइज़ हुआ था। तो वो क्या हुआ होगा कि मन दर्पण परमार्थ वही है, क्या हे केशव बस बात यही है। मन दर्पण परमार्थ यही है, क्या हे केशव बस बात यही है। भ्रम के धर्म में उलझा था और संग अधर्म के बहरा था। अंधे कुल के लाज के खातिर हरण द्रौपद चीर का सहरा था। मैं मन से कितना बहरा था। अगला है कि जिसे चाहते सब वहाँ रहता मैं, आसमां को घर ता कहता मैं। कि जिसे चाहते सब वहाँ रहता मैं, आसमां को घर ता कहता मैं। और तारा तारा करती दुनिया, मैं धरती धरती कह रहा था। फिर छूटा आसमां टूटा तारा, हुआ धरती पे गड्ढा गहरा था। मैं मन से कितना बहरा था। थैंक यू। Let's keep it going. Come on. Just the last 2-3 performers. Are you all performing? Tomorrow, I'm performing. So you'll have just come to watch. Thank you. Because I was just like, okay, one of them will go on, and I realized we're down to our last 3, and I know who the last 3 are. And I'm like, 1 second. She रेकी करने आई है यहाँ पे. Let me just get a feel of the place. How is the crowd? What time? 7, 9? 9. You got time. Yeah. Great, yeah. Okay, have fun. Good luck. I might not be there. I'll see you. Might come. I don't know. No, tomorrow I'm not in town. Won't come. But good luck. What's your name again? Anushka and? Neil. Great. Great stuff. You're not performing. You're also performing? No. Okay, cool. Great. A very weird conversation, I know. I was just like thinking at the back of my head. But thank you so much. Thank you so much for performing. आपने कितना कैसे लिखना शुरू किया? डी. इतना टाइम. Wow. And कैसे लिखना शुरू किया? ऐसे. बस ऐसे. डॉक्टर कैसे बने? ऐसे. पढ़ा था चारू कुछ, बोला चलो ऑपरेशन कर ही लेते हैं. काट दिया गला. Great. Nice. And do you rap? Like, do you write rap? Yeah, I perform, I try also, like I'm learning. Great, yeah. Round of applause. That's beautiful. Thank you. Oh, there you are. Great. Rap is rhythm and poetry, right? So, great. We'll call our last 2-3 acts left. Yeah. Come on. You guys know what to do. Please welcome on stage, Seth. Please keep the applause going until he comes. Hi, my name is Seth. शुरू करते हैं. शायरों की तरफ से लिखता हूँ मैं, तो शायरों के लिए ही है. कभी मिलना तुम फुर्सत से मुझे, तुम्हें खुद से मिलाऊंगा, दिल की बातें बताऊंगा और शायरी सुनाऊंगा. कभी चलो किसी सफ़र पे साथ मेरे, तुम्हें अपने कंधे पे बिठाऊंगा, तुम्हें अपनी पलकों पे सजाऊंगा और शायरी सुनाऊंगा. जो यकीन ना हो परियों में तुम्हें, तो मिलना मुझे 14वीं शब को, तुम्हें अपनी छत पे ले जाऊंगा, चांद की रोशनी में तुम्हें आईना दिखाऊंगा और शायरी सुनाऊंगा. कभी आना मुझसे मिलने मेरे ख्वाबों में मेरे, कभी आना मुझसे मिलने ख्वाबों में मेरे, तुमसे मिलने ख्वाबों में रोज़ आऊँगा, उन ख्वाबों को अपनी हकीकत बनाऊँगा और शायरी सुनाऊँगा. कभी टकरा जाना मुझसे मोहल्ले में मेरे, अपनी माँ से मिलाऊँगा, अपनी हाथ की बनी चाय पिलाऊँगा और शायरी सुनाऊँगा. जानता हूँ शौकीन हो तुम खाने पीने की बहुत, जानता हूँ शौकीन हो तुम खाने पीने की बहुत, तुम्हें पहाड़ों में मैगी, समंदर किनारे मछली खिलाऊँगा, गर्मियों के आते ही तुम्हारे लिए इमली और आम तोड़ लाऊँगा और शायरी सुनाऊँगा.
जो चाहो श्रृंगार करना तुम कभी, तुम्हारे लबों के लिए गुलाबों की लाली छीन लाऊंगा, तारों की बिंदिया तुम्हारे माथे सजाऊंगा, कोयल की कूकू की पायल तुम्हारे पाँव पहनाऊंगा, अंधेरी रात का काजल तेरी आंखों में लगाऊंगा और शायरी सुनाऊंगा। तो मोहब्बत तो अभी थोड़ा सा सीरियस वाला सीन। लोगों को दिल से लगाना छोड़ दिया, हमने अपनों को भी आजमाना छोड़ दिया, अपनों के पीछे करते हैं बुराई अपने, हमने अपनों की महफिलों में जाना छोड़ दिया। मुसीबत में सदाएं किसको दूं, तूफ़ा के आते ही परिंदों ने ठिकाना छोड़ दिया। मुसीबत में सदाएं किसको दूं, तूफ़ान में परिंदों ने ठिकाना छोड़ दिया। जब से जागी है मौत की आरज़ू दिल में, लहरों ने भी डुबोना छोड़ दिया। अब हम मरीज़ों का इलाज कौन करे, जिनको तबीबों ने दुआ के भरोसे छोड़ दिया। जब भी सोचा कि मंजिल आने को है, ज़िंदगी ने मुझे गलत ही ठिकाने छोड़ दिया। अब किसी और से कोई गिला कोई शिकवा कैसा, अब किसी और से कोई गिला कोई शिकवा कैसा, हमने भी खुद का दामन जो छोड़ दिया। वो जो मांगा करता था खुदा से खुशियाँ मेरी, उसने भी खुदा से लौ लगाना छोड़ दिया। जो मुहाफिज था इस शहर में तन्हा मेरा, अब उसने भी मुझे मेरे हवाले छोड़ दिया। दीवानों सा हाल बना रहता है अब हर सू मेरा, जब से उसने मेरे बालों को सहलाना छोड़ दिया। कोहरे हैं कागज़ और सूखे कलम मेरे, जब से हमने है दिल को जलाना छोड़ दिया। कोई दोस्त अब दोस्त नहीं कहता मुझको, जब से हमने है कमाना छोड़ दिया। जाम का एक कतरा भी समंदर है अब सैफ, जब से हमने है मैखाना छोड़ दिया। Okay, that's my time. Thank you. That was wow. Sorry, that's my best Seth impression. Don't judge. But thank you so much. How long have you been writing for? बचपन से. Nice. Thank you. कैसे हाथ से? Wow. कितनी स्मार्ट ऑडियंस है हमारी आजकल. Great. Thank you so much for performing. Round of applause one last time. And keep it going. Keep it going for our second last act of the evening. Please give it up for Kanchi. She's going to come all the way from the last row. Keep the applause going. Come on. We've been such a great and supportive audience. Thank you. कुछ हफ्तों पहले इस कंट्री में ऐसा कुछ हुआ कुछ हफ्तों पहले इस कंट्री में ऐसा कुछ हुआ था, कोलकाता में स्पेसिफिकली, जिसके बारे में उस एक हफ्ते में हम सब ने स्टोरीज डाली थी, आई एम श्योर. उसके बाद a lot of incidents happened that came out in the open, and those incidents scared, of course, everybody in the country, but women too. और honestly, this piece is just something I wrote to खुद को दिलासा दिलाने के लिए. इस देश ने मुझे सिखाया है, नारी तू नारायणी, सरस्वती भी तू ही कल्याणी, जननी भी तू ही तारिणी, लक्ष्मी का रूप तू ही सुंदर मोहिनी, लेकिन बहिष्कार का शिकार तू ही उन भेड़ियों की हिरनी. कैद में रखेंगे तुझे, सताएंगे भी, पर हाथों में जब हो त्रिशूल तो सिर झुकाएंगे भी. शिव की होगी जब तू शक्ति, तेरे साहस की महिमा गाएंगे भी, पर हो साहस उनके खिलाफ आवाज़ उठाने का तो इज्जत और शरीर के टुकड़े करवाएंगे भी. गले में हो कंकालों की माला तो लाल सिंदूर से तुझे रिझाएंगे भी, पर हो अगर स्टेथोस्कोप तो वही लाल खून बनाकर बहाएंगे भी. कमल पर होगी जब तू विराजमान तो धन धान्य का मांगेंगे वरदान, चढ़ाएंगे तेरे माथे पर चुनर शरण में पान, फिर 9 दिन की इज्जत 9 मिनटों में छीन भी लेंगे, उसी वस्त्र का हरण कर दिखाने अपनी मर्दानगी की झूठी सी शान. समय साक्षी है,
करेंगे अत्याचारी चीरहरण और वार, वैसे ही जैसे पांचाली को खड़ा किया था बीच दरबार। तू चीखेगी, चिल्लाएगी भी, रोएगी, गिड़गिड़ाएगी भी, असहाय होकर अपने औरत होने को कोसेगी भी। तू बेइज्जत होगी, तू होगी लाचार, और शायद इस बार सहायक बनके कृष्णा नहीं आएंगे तेरे द्वार। थैंक यू। लेकिन नारी तू भूलना मत, तू आज भी नारायणी। कोमल पद्मिनी तू तो ज़रूरत पड़े तो तू ही कत्यायनी। रुक्मिणी भी तू ही जंगलों की अरण्यायनी। जिंदगी देने वाली भवानी तू, तो याद रख तू ही महिषासुर मर्दिनी। लड़ उन सबके हक के लिए जिन्होंने उन हैवानों के कारण जान है गंवाई। रच हर आने वाली निर्भया के लिए एक नई कहानी। ना वो सहमे, ना उसे डरना पड़े, सिर उठाकर वो जिए, ना कभी रेप विक्टिम का नाम उसे देना पड़े। थैंक यू। Thank you so much, Kanchi ji, for talking about it being so powerful on stage. We're going to try and increase our mic volume, which is what I told Abhay to do, because of we got through the entire open mic without it, and the last two performers. But I'm sorry about the noise. But I'm glad as an audience, as soon as we clapped louder than that, so that Kanchi could. Just a round of applause for you guys. Well stuff, and keep the applause going. Last act of the evening, please give it up for Ravikant. Keep it going, keep it going. कंपटीशन बड़ा है मेरा, ठीक है कि कभी भी दूर जाने का नहीं रखा इरादा, समझो ना। कभी भी दूर जाने का नहीं रखा इरादा, समझो ना। मैं हूँ तुम्हारा, हाँ तुम्हारा, बस तुम्हारा, समझो ना। कभी भी दूर जाने का नहीं रखा इरादा, समझो ना। मैं हूँ तुम्हारा, हाँ तुम्हारा, बस तुम्हारा, समझो ना। क्यों पूछते हो मैं तुम्हें क्यों देखता हूँ बार बार? क्यों पूछते हो मैं तुम्हें क्यों देखता हूँ बार बार? क्यों नहीं समझते तुम इशारा, समझो ना। क्यों नहीं समझते तुम इशारा, समझो ना। एक दफ़ा जो हो गया सो हो गया, क्या बात हुई? एक दफ़ा जो हो गया सो हो गया, क्या बात? दिल है करता फिर दोबारा, समझो ना। उसके सिवा मुझको और कुछ नहीं चाहिए, उसके सिवा मुझको और कुछ नहीं चाहिए। कह दिया नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। आओ। उसके सिवा मुझको और कुछ नहीं चाहिए, कह दिया नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। बच्चे की तरह दिल को मेरे जिद है एक शख्स की, बच्चे की तरह दिल को मेरे जिद है एक शख्स की। कहता है लगातार वही चाहिए, वही चाहिए। एक नज़्म सुनाता हूँ, देखिए इसमें चेहरा बनता हुआ दिखेगा तुम्हें। देखिए कि भूरी आंखें सावला चेहरा, भूरी आंखें सावला चेहरा, उन पर है जुल्फ़ों का पहरा। ठहरे ठहरे देश से जो धुमके, भूरी आंखें सावला चेहरा, उन पर है जुल्फ़ों का पहरा। ठहरे ठहरे से दो झुमके, उन पर चढ़ा रंग सुनहरा। गहरे गहरे गालों पर डिम्पल, सिंपल सिंपल से दो होंठ, होंठों के नीचे का तिल, बल खाती कमर का तिल। नखरे और कलाकारी, कोई नहीं इसमें अदाकारी। सादगी समझदारी वफादारी, क्या बताऊं तो कितनी है बेहतरीन लड़की। तुझे किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं, तो कुदरती हसीन है हसीन लड़की। एक नज़्म सुनाता हूँ लास्ट, ठीक है कि याद है मुझको पहली मुलाकात, याद है मुझको पहली मुलाकात। ऑफिस की छत, चाय और बरसात, लोगों की भीड़ में जब तुमको मैंने देखा था। खुले आँखों के ख्वाब की तुम रानी बने, कहानी बने किसी की पहली मोहब्बत की। बचपन की भूल और जवानी की नादानी बने। नीला कुर्ता सफ़ेद दुपट्टा तुमने ओढ़ा था, याद है मुझको वो हसीन शाम अब भी। तुम दूसरी नौकरी का हवाला देके छोड़ गए, मैं उसी ऑफिस में करता हूँ काम अब भी। नाम अब भी नक्श है उस सीट पर जहाँ हर रोज़ तुम बैठा करते थे। कंप्यूटर के दाएं कोने से छुप छुप कर मुस्कुराते हुए मुझे देखा करते थे। झिझक छोड़ के जब तुमने मेरा नाम पूछा,
हवाएं तेज हुई, पर्दे सारे हटने लगे। तुम हसीन पल थे और मेरी उम्र 26 थी। जिम्मेदारियों के साथ तुम बंटने लगे। कटने लगे थे पेड़ जब इस दुनिया से, मैं कहीं अलग अपने ख्वाब सजा रहा था। तुम किचन में रोटियां सेक रही थी, मैं तुम्हारे गालों पे आटा लगा रहा था। सता रहा था तुम्हें नादानियाँ करके, तब तक चले आए तुम आंखों में पानी भर के। चैन से सोया ही था कि आंधी आई, ख्वाब सारे टूट कर चूर हुए। मुझे मजबूरियाँ बताकर तुम मुझे मजबूर किए और दूर हुए। खेल जो तुमने मेरे साथ खेला था, उसमें तुम्हारी जीत मेरी मात हुई है। सूखे दरख्तों को नहीं कुरेदता वगरना मैं जानता हूँ किस किस से तुम्हारी बात हुई है। झूठ जानता हूँ किस किस से तुम्हारी बात हुई है। झूठ कहते थे तुम मुझसे प्यार करते थे, झूठ कहते थे मेरा इंतज़ार करते थे। हर गली में तुम्हारे 4 आशिक थे, जिससे मिलते थे उसको याद करते थे। तुम्हारा कहना मोहब्बत करना गलती थी, यही गलती तुम बार बार करते थे। मैं तुम्हें बेवफा तो नहीं कहता, मगर तुम मोहब्बत नहीं कारोबार करते थे। थैंक यू गाइस। I've heard of body shot. I've never heard. Bloody hell. I've heard of body shot. I've not heard gali chapati. Galo pe aata. Fuck, great one. But that brings us to the end of the open mic. Round of applause for every single person that performed, for every single person that came out, the Habitat team, every single person that's made you look good on camera. You guys will get your photos and the link for today in your DMs in 5 to 6 business days. Today is a Sunday. It's not a business day. Understand that. Okay? And Ganesh Chaturthi is coming. Ganesh Visarjan is going to happen. If you didn't guess quite yet. But yeah, thank you everybody. Thank you to Habitat. Thank you to every single person that came. Round of applause. Yeah, round of applause. Jate jate, I have a small 30-second piece. How many of you guys get scared? Say woo! Y'all are so scared to even say woo. So this is a small piece that I've written. It's called I'm Scared. Very small, yeah. So if you guys like, snap along. I'm scared. I'm scared to fail. I'm scared to dream. I'm scared to try. I'm scared to believe. I'm scared. I'm scared to love. I'm scared to love. I'm scared to cry. I'm scared to feel. I'm scared to die. I'm scared. I'm scared to crawl. I'm scared to crawl. I'm scared to walk. I'm scared to share. I'm scared to talk. I'm scared. I'm scared to guess. Uncertainty aa jati hai na life mein. I'm scared to guess. I'm afraid I don't know. These uncertainties of life are amusing though, because we all keep alarms even though we're not guaranteed tomorrow. I'm scared. You know life? Everyone knows life. It fucks you in the ass every day. Life, it throws you against that back wall, but if I have you by my side, life, sometimes it's not that scary after all. Thank you very much. My name is Ash Malhotra. You guys have been absolutely fantastic. I hope you guys have a great, great rest of the evening. All the performers, just quickly get on stage for a group photograph and we'll vacate the studio.